What is spherical mirror? Spherical mirrors. Every spherical mirror is a part of your sphere. We know that mirror, there are mainly two kinds of mirror. First one is your plane mirror, and second one is spherical mirror. Spherical mirror is of two kind. First one is your concave mirror. This is concave mirror, and second one is convex mirror. Every spherical mirror is a part of sphere. Let this is your sphere. मान लिया एक sphere है और ये भी हमने एक sphere ले लिया. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि if silvered part is from outside, अगर ये बाहर से silvered है, if silvered part is from outside और इसको हम कट कर देते हैं तो ये मिरर दो पार्ट में बट जाएगा और you will get two concave mirrors. यहाँ पे दो concave mirror आपको मिल जाएंगे. If silvered part is from inside, अगर ये inside से है silvered और इसको हम ब्रेक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दो कॉन्वेक्स मिरर मिल गया. तो हम बोल सकते हैं कि एवरी स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला कि दिस इज योर कॉनकेव मिरर. कॉनकेव के लिए क्या हो गया? सिल्वर्ड पार्ट इज फ्रॉम आउटसाइड एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स. तो कॉन्वेक्स के लिए क्या है? सिल्वर्ड पार्ट इज फ्रॉम इनसाइड. ये हो गया convex mirror. Let this is a spherical mirror and this spherical mirror is your let convex. This is convex. ये मान लिया convex mirror है and this is center of this sphere. मान लिया ये इस sphere का center है. इस center को हम center of curvature बोलेंगे. This C is called center of curvature and your center of curvature, and from here to here this distance is called R and this is C, this is P. Let CP is called R, that means radius of curvature. Radius of curvature. This is radius of curvature. And midpoint between C and P. Midpoint between C and P is called F and this is called focus. This F is called focus. Focus of the mirror. And here PF is the distance and this distance is called focal length. This is called focal length. And the line joining center to focus is called principal axis. This line is called principal axis of the mirror. CP line is principal axis. This line is your principal axis. This is X dash and this one is your X. And let parallel beam is coming like this one. Parallel beam of light is coming. Parallel beam after reflection always passes through focus. ये हमेशा focus से pass करेगा. This is focus, this is focus. And always remember the ray passing through center. Ray passing through center is always perpendicular on this. This is always perpendicular on this. ये मान लिया हमारे पास स्फेयर है. दिस इज स्फेयर एंड दिस इज सेंटर. तो सेंटर से जो लाइन पास करेगा दिस इज रेडियस और ये जो होगा वो हमेशा इस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. इसको हम यहाँ पर नॉर्मल कहेंगे और ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर. दिस इज योर टेंजेंट. दिस वन इज टेंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल. ये हो गया आपका नॉर्मल है.
और ये, तो यहां पर ये जो लाइन है C, इसको हम M नाम दे देते हैं, CM इज नॉर्मल, CM इज नॉर्मल, and this angle is angle I, this angle is angle I, and this is angle R, and this angle is equal to this angle, that means angle I is equal to angle R. यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है आपका। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, फोकस से अगर होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल। और यहाँ पे देखिए सेंटर से जो लाइन पास कर रहा है CM इज परपेंडिकुलर नॉर्मल, इसको नॉर्मल कहेंगे, और ये आपका नॉर्मल है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा। तो देखिए दिस एंगल इज एंगल I एंड दिस एंगल इज एंगल R, एंगल I इज इक्वल्स टू angle R here. Here there are two figures. Here this mirror is called concave mirror. This is concave mirror, and this mirror is called convex mirror. Convex mirror. And see the difference here. And there are some similarities. This is principal axis. CP is principal axis, this is center of curvature, this one is your focus, and this is pole. This point is your P is your pole. P is called pole, and here pole is this one. This is your pole. This is focus, this is center of curvature, and this distance CP is your R, that means radius of curvature, and here this distance is radius of curvature. Here parallel beam of light is coming from this side, and after reflection it will pass through focus. It will pass through focus. All parallel beam of light after reflection will pass through focus, and the line passing through C to M, C to M is normal. Here CM is normal, and apply here law of refraction. This is angle of incidence, and this is angle of reflection. So angle I is equal to here angle R. Okay, and here in this geometry, this is parallel beam of light, this is incident ray, this one is here incident ray, this is here incident ray, and this is reflected ray. Reflected ray. Here this is incident ray, and this is reflected ray, and this is normal. Normal always pass through the center of curvature. This is normal N, and this is your angle I, and this is angle R. Here also angle I is equals to angle R, and here after reflection parallel beam of light after reflection, देखिए बैक करने पे ये फोकस से पास करेगा आपका, तो ये भी देखिए फोकस से पास कर रहा है, एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों ही बात दोनों तरफ वैलिड है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, तो देखिए बैक साइड करने पे फोकस से पास कर रहा है, एंड द रे और लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर is perpendicular, and perpendicular means it is normal, and here law of reflection holds, that means angle I is equal to angle R, and your all incident ray, reflected ray and normal lies in the same plane. Spherical mirror. Rules for drawing images by spherical mirror. Spherical mirror. First rule: parallel beam of light after reflection always pass through focus. Let this is your concave mirror, and this is your principal axis, and this is center of curvature, and this is parallel beam of light. Parallel beam of light after reflection always pass through focus. देखिए फोकस से पास करेगा, और इसके लिए भी आप एप्लीकेबल है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा फिगर एक ले लेते हैं।
और इस फिगर में देखिए दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस एंड इट ऑलवेज हियर लेट दिस वन बैक करने पे देखिए आपका ये इस तरह से ये पास कर रहा है, दिस इज फोकस। ये डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं, इसको सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं, ये डॉटेड लाइन तो देखिए फोकस से आपका पास करेगा फोकस से एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, रे passing through focus after reflection it becomes parallel to the principal axis. Second rule, let this is your concave mirror and this is your principal axis, this is your pole, this is center of curvature and this is focus. A ray passing through focus, a ray passing through focus, if incident ray is passing through focus, after reflection it will be parallel to your principal axis. Passing through, incident ray is passing through focus, after reflection it will be parallel to principal axis. That means this rule is the converse of your first statement. First statement था कि incident ray parallel है principal axis के, तो after reflection it will pass through focus. लेकिन ये जो है उसका converse है कि if incident ray is passing through focus, then it after reflection it will be parallel to your principal axis. या फिर इसी को हम इस डायग्राम को हम ऐसे ही बना सकते हैं, let this is your convex mirror and this is focus and this is center and let any ray, this one is and this is passing through focus. अगर इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं डॉटेड लाइन से तो ये आपका ये कुछ इस तरह से है तो ये पैरेलल हो जाएगा, that means this is, देखिए इंसिडेंट रे is passing through focus but after reflection it is parallel to principal axis. Next, let this is your concave mirror and this is center and this is focus. A ray passing through center, ray passing through center is normal itself और ये खुद नॉर्मल के साथ एंगल जो बना रहा है वो जीरो बना रहा है, दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये जो रे पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो खुद नॉर्मल है और वो खुद सीधे उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा बैकवर्ड, दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स यू कैन से अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ concave mirror and directed towards the center of curvature in the case of convex mirror falls normally and reflected back along the same path. For example, your this figure is let and this is any ray and this is C and this is F, then it is normal, तो ये बैक बाउंस कर जाएगा सेम डायरेक्शन में, यानी कि इंसिडेंट रे बैक बाउंस कर जाएगा सेम डायरेक्शन में if it is passing through center of curvature. Center of curvature से पास करने का मतलब है geometrically you can say it is normal to the surface और normal है तो angle I equals to angle R and both angle is 0 and it reflects backside. Now there are some basic assumptions and sign convention regarding your plane mirror or spherical mirrors. While dealing with the reflection by light by spherical mirror, we follow the some sign conventions. First sign convention is always remember the object is always taken on left side of the mirror. Object को हम हमेशा कोशिश करेंगे कि वो लेफ्ट साइड ही रहे. All distances are measured from the point pole. सारे डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे पोल से ही. फॉर एग्जाम्पल दिस इज लेट m, तो डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे pm. अगर हमारे पास मान लिया कोई किसी पोजीशन के लिए यहाँ पर हम चाहे वो इमेज का पोजीशन हो या कुछ भी हो अगर मेजर कर रहे हैं n, तो ये pn जो होगा दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि pn जो हो गया वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है. तो यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग समझेंगे और वो है क्या, फर्स्ट लॉ इज योर और साइन कन्वेंशन इज all the rays in the direction of incident rays taken as positive, all parameters in the direction of incident ray
is taken as positive. First. Second point always remember, all distances are measured from the point pole. All distances are measured from the point pole. And third important point is, your above the principal axis height is taken as positive and below the principal axis height is negative. Above the principal axis h is positive and below it is negative. And fourth point is, all distances are measured from the all objects are always taken on the left side of mirror. And your third point is, object is always taken on the left side of mirror. But this is main your assumptions or sign convention regarding spherical or plane mirror. All parameters in the direction of incident is taken as positive. इस डायरेक्शन में जो भी पैरामीटर्स होंगे वो सब पॉजिटिव लेना होगा. सारे डिस्टेंस को हम पोल से ही काउंट करेंगे. Pn पॉजिटिव, Pm नेगेटिव. यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या है, नेगेटिव है. इमेज डिस्टेंस क्या है, ये भी आपका नेगेटिव है, यहाँ पर देख सकते हैं. एंड हियर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हियर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव. दिस इज हाइट इज हियर पॉजिटिव एंड हियर हाइट इज negative. H is negative because it is below the principal axis. Let us see the problem related to sign convention here. Here this is concave mirror, this one is concave mirror, and as per sign convention ये कहता है कि तीन इंपॉर्टेंट बात है साइन कन्वेंशन में जिसको कि याद रखना है और दिमाग में बैठा के रखना है इसको. फर्स्ट, all the rays in the direction of incident ray is taken as positive. That means हम जो भी डिस्टेंस लेंगे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लेंगे. एंड सेकेंड पॉइंट इज, above the principal axis height, length or distance is your positive, below the principal axis it is negative. And third important point is, all distances are measured from the point pole. सारा डिस्टेंस पोल से ही मेजर करेंगे. तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखिए ये है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है. तो हमारे पास अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि ये जो स्फीयर है वो कुछ ये कनकेव मिरर है वो इस स्फीयर का पार्ट है, इस स्फीयर का पार्ट है. ये कनकेव मिरर जो है वो इस स्फीयर का पार्ट है. ये कनकेव मिरर इस स्फीयर का पार्ट है और ये कनकेव मिरर कुछ इस स्फीयर का पार्ट है. जिस तरफ स्फीयर बन रहा है उधर ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, उधर ही हम फोकस रखेंगे. जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी साइड हम फोकस रखे हैं, उसी साइड हम फोकस रखे हैं, उसी साइड फोकस रखे हैं. तो देखिए ये कनकेव मिरर है. तो ये कनकेव मिरर के लिए इस सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन के लिए देखते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट यहां देखिए. तो हम लोग यहां पर देखेंगे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो है वो कुछ लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसमें कि, और डिस्टेंस मेजर होता है पोल से. तो हमारा पीएफ जो है वो है हमारा फोकल लेंथ. तो देखिए फोकल लेंथ के लिए हमको इधर आना पड़ेगा, ऐसे पी से फोकस की ओर जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट पोल. पोल से मेजर होगा तो पी से एफ की ओर आएंगे. तो यानी फोकल लेंथ हमारा क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव. इसका साइन हम क्या डालेंगे, नेगेटिव. ठीक है, तो नेगेटिव के लिए माइनस भी क्यों लिख सकते हैं. हियर आर देखिए, आर भी क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी. ये देखिए इसके लिए भी हमको इधर ही आना पड़ेगा, तो इसको भी हम क्या रखेंगे, नेगेटिव. फिर देखिए हम आर के लिए ये हमारे पास ये हो गया नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए, ऑब्जेक्ट के लिए पीओ, पी से ओ की ओर आना होगा. दैट मीन्स इसी डायरेक्शन में आना होगा, उल्टा इंसिडेंट रे के ऑपोजिट. दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव. इमेज देखिए, इमेज भी इसी साइड बन रहा है. तो हम लोग देखेंगे पी से आई की ओर आएंगे अगर, तो ये भी इस डायरेक्शन में है. दैट मीन्स ये भी आपका नेगेटिव. यानी इस केस में हमारा यू, वी, आर एंड एफ ऑल आर नेगेटिव. देखिए इन सेकेंड केस, सेकेंड फिगर में देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट
इमेज इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में है, तो देखिए इमेज जो है वो इसी डायरेक्शन में है। पी आई के लिए हमको पी से आई की ओर जाना होगा, पी से आई की ओर, दैट मीन्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो पी आई हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा सेकंड फिगर के लिए। पी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए नेगेटिव, पी से ओ की ओर आएंगे, पी से हम स्टार्ट करेंगे और ओ की ओर आएंगे, दैट मीन्स दिस इज योर नेगेटिव, ये पार्ट आपका नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, पी से एफ की ओर आएंगे, ये भी आपका नेगेटिव। देखिए पी से आना होगा सी तक, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी आर, तो ये भी आपका क्या होगा, नेगेटिव। दैट मीन्स इमेज को छोड़कर बाकी सारा कुछ क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा। नेक्स्ट केस, थर्ड केस देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें भी इंसिडेंट रे हम लोग देखेंगे। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो हम लोग इस डायरेक्शन में देखेंगे। तो पी आई हमारा होगा पॉजिटिव, पी एफ पॉजिटिव, पी सी पॉजिटिव, और पी ओ जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आपका नेगेटिव होगा। दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव, रेस्ट ऑल आर पॉजिटिव, हियर पॉजिटिव, हियर पॉजिटिव। क्योंकि देखिए पी से आई की ओर इमेज के लिए हमको जाना होगा, पी से आई की ओर, दैट मीन्स इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। पी से एफ की ओर जाएंगे तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। पी टू सी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए भी तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। एंड द इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी लेंगे हम लोग वो सब पॉजिटिव होगा हमारा। इस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इस केस में देखिए पी ओ यानी हमारा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा ये पार्ट हमारा पॉजिटिव होगा। पी ओ देखिए ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। पी एफ ये भी हमारा क्या होगा, पी एफ फोकल लेंथ, ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पी सी दैट मीन्स आर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इमेज देखिए हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन बन रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो इमेज हमारा नेगेटिव होगा। इस केस को देखिए, इस केस में देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरह से है, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम शो किए हैं डॉटेड लाइन से, तो ये देखिए ओ फिगर है हमारे पास। तो ओ के लिए देखिए पी ओ यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, पी एफ यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव, पी सी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा पॉजिटिव, पी आई ये देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसका इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है ये, तो इसका डायरेक्शन जो हो गया वो नेगेटिव हो गया। तो ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन पे बेस्ड प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको साइन कन्वेंशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर साइन कन्वेंशन का प्रॉब्लम मिरर से रिलेटेड है तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग लेंस पे भी बात करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको, ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर कर देगा कि कब कौन सा साइन हमको यूज करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन between focal length and radius of curvature, radius of curvature R. Let this is any concave mirror, this is any concave mirror, मान लिया कोई concave mirror है, and this is your principal axis and this is paraxial rays, parallel beam of light एक ले लेते हैं और एक single ray लेते हैं, and after reflection parallel beam of light will pass through focus, ये आपका focus से pass करेगा, and this point is pole, ये आपका pole है, this is center of curvature, this is focus, this is pole, and ray passing through your center of curvature is normal at this point. Let this point is M. इस point को हम M ले लेते हैं, तो this angle will be angle I and this is angle R, and from law of reflection angle I is equal to angle R हम लोग जानते हैं, and let this angle is alpha. तो ये अगर एंगल अल्फा है तो हम लोग को पता है कि ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये पैरेलल बीम है, दिस वन एंड दिस वन रे इज पैरेलल, तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये देखिए अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल I is equals to, you can write angle alpha and angle I is equal to angle R. So angle this is. Now you know if parallel beam of light falls on at this point here, this angle and this one is your alternate angle and this angle is equal. Angle I is equals to, you can write angle alpha
एंड एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एंगल I अल्फा के बराबर है, एंगल I R के बराबर है। तो माइनस करने पे ये हमारे पास आ गया, दिस इज कैंसिल आउट, दैट मीन्स एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू एंगल R। ये आप लिख सकते हैं इससे। तो जब ये एंगल अल्फा एंगल R के बराबर आ गया, एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू एंगल R, तो अल्फा एंगल R के बराबर आ गया। तो इन दिस ट्रायंगल CFM, इन ट्रायंगल CFM, साइड CF विल बी इक्वल टू FM, ये FM के इक्वल होगा। एंड आपको पता है कि ये दोनों जो है पैरेक्सियल रेज है। पैरेक्सियल रेज का मतलब हो गया, पैरेक्सियल रेज बहुत कम डिस्टेंस पे होता है, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, दैट मीन्स PM टेंड्स टू 0, ये बहुत कम होगा। तो जब ये बहुत कम होगा तो हम बोल सकते हैं कि FP इज इक्वल टू योर FM, ये FM के इक्वल होगा, FP FM के इक्वल होगा। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, सो यू कैन राइट CF plus FP, you can write CF plus FP is equals to your, you can write this one and this one is equal, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। CF is equals to हम लिख सकते हैं क्या, PF लिख सकते हैं, CF equals to PF and you know CP is equals to R, और PF जो हम बोल सकते हैं this is F, that means CP is equals to, you can write CP is equals to 2PF, CP is R and this is 2 twice and this is F, that means F equals to R by 2, R is the radius of curvature, F is the focal length, so this is the relation between your focal length and radius of curvature, F equals to R by 2 or R equals to 2F, or you can write R equals to 2F. This is the relation